Last class, there wasn't any homework, right? There wasn't any homework. Mostly this is your last resuming from I'll message you about the timetable and all. Mostly this is your last date and then you'll resume from second week of April. लेट इन द सेंस आपका जो भी कॉलेज एग्जाम है वो जैसे खत्म होएगा तब उसके बाद चालू होगा। कुछ छुट्टी मिलेगा नहीं। Write the exam, come for the CA. This is how it is. सारी इतना मजा किया क्वालिटी सब मिलेगा। हाँ सर चलो भी सुनो आपका ARS का आज थोड़ा सम्स और स्टेटमेंट बोल दो। All of you take sum number 16, page 30. Sum number 16, page 30. Sum, page 30. All of you are comfortable now with BRS and all? Arrows and all जम रहा है सबको? अभी भी किसी का कच्चा है arrows and all? या प्रॉब्लम आ रहा है सॉल्विंग में, इंटरप्रिटेशन में? So it's better for practice. देखो CA एग्जाम्स है, 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड नहीं है. It's a career based thing, ठीक है? इसमें डील छोड़ोगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम्स है BRS में, you take the standard textbook and keep solving all illustrations and practical problems. Plus, अभी जो आपको हॉलीडे मिलने वाला है, उसमें I'll be sharing the past papers. 12-13 अटेम्प्ट्स जो हुए हैं उसके पेपर्स मैं आपको भेज दूंगा और सॉल्यूशंस भी शेयर कर दूंगा। उसके बाद कॉपी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, थोड़ा पॉज कर, 1 घंटा एकदम चलो। अभी आपको मैं पेपर सेंड कर दूंगा, उसके बाद सॉल्यूशंस रहेंगे। यू हैव टू
गो थ्रू एंड इफ पॉसिबल सॉल्व, राइट एंड सॉल्व जो भी टॉपिक्स के हमारे क्वेश्चंस हो गए, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी, कैश बुक, पेटी कैश बुक एंड बीआरएस ऑल्सो। बीआरएस अपना पूरा कंप्लीट शायद ना हो, बीआरएस में और 2 लेक्चर्स जाएगा अपना। एक तो आपका वो एक्सट्रैक्ट मेथड है, वो बाकी है, लेकिन वो आज तक कभी पूछा नहीं है आईसीआई में एग्जाम्स में। एंड दूसरा है एडजस्टेड कैश बुक, वो पूछा है 2-3 बार पूछ लिया है एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक इज बेसिकली रेक्टिफाइड कैश बुक, और मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। So adjusted cash book, okay, that part I'll teach you, वो बाद में करेंगे। तो वो वाले सम्स मत करना एडजस्टेड कैश बुक वाले, उसके अलावा बाकी सारे करना, ठीक है। Now let's start with sum number 16, page 30. We prepare a BRS on 31/12/14. 31/12/14. Credit total of bank statement. What do you mean by bank statement? Passbook. Bank statement means passbook. Credit total you can take it as credit balance. कुछ नहीं दिया है तो it is what, normal or OD? Bank balance as per passbook. Bank balance या normal balance as per passbook. This is 1000. Okay. So we are moving from passbook to cash book with what? Normal balance. अभी this entire problem is dedicated to checks. Okay? पूरा problem checks पे based है. First one, check of 10,000 sent to the bank for collection, of which 8,000 were collected in Jan. We are doing it for which month? December. What do you mean by sent to bank for collection? Is it deposited or issued? Deposited. So I think CB went up by 10,000, but PB went up by 8 or 2? 2. क्योंकि उधर क्या दिया है? 8 were collected in Jan. तो इसका मतलब 2,000 were collected in December. Is that clear? पहला वाला समझ में आया? जो सेम मंथ क्लियर हो गया है वो बीआरएस में नहीं दिखेगा। उधर पढ़ना कौन से महीने में क्लियर हुआ है बराबर से मेंशन किया होगा। समझा आपको? पहला वाला क्लियर सबको? हेलो हेलो। Checks of 10,000 were drawn on parties of which 8,000 were presented in December. Drawn का मतलब क्या है? Issued. तो 10,000 का checks were drawn मतलब issued, of which 8,000 are presented in December. मतलब पासबुक में भी कितने का एंट्री हो गया है? 8 का हो गया, बराबर है? 10 का कैश बुक में, 8 का पासबुक में, क्योंकि 8 का दिसंबर में क्लियर हुआ है, तो बचा कितना? 2,000। वो ड्रॉ तो किया है, मतलब इश्यू तो किया है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बराबर है? अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। All of you got that? Third one, checks of 500, 600, 700 are deposited, out of which check of 500 was presented in January and check of 600 was dishonored. अब जैसे multiple checks दिख जाए, you can just split them up individually, 500, 600 and 700. 500 का check are deposited, of which 500 was presented in Jan, but was it presented in December? No, it did not reach passbook. And 600 का चेक क्या हुआ है? Dishonored, मतलब ये भी पासबुक तक नहीं पहुंचा। मैंने आपको बताया था, याद है? डिसऑनर। डिसऑनर के लिए क्या सोचने का कि सीबी में है और पीबी में नहीं। Always assume PB is flat. तो deposited and dishonored मतलब CB up PB flat and issued and dishonored मतलब CB down PB flat. Hope that is clear. एंड बचा हुआ 700 के लिए क्या सोचूं मैं? ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? क्यों ऐसा सोच रहे हो? याद है मैंने बोला था लास्ट क्लास,
ये पढ़ने का जो लास्ट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट है उसमें बोला है कि क्लियर नहीं हुआ है तो बैलेंस क्लियर हो गया, और अगर ये क्लियर हो चुका होता तो बैलेंस क्लियर नहीं होगा। क्लियर ऑपोजिट सोचने का। तो इसमें प्रॉब्लम एरिया इज 1100, डिपॉजिटेड मतलब सीबी गोज अप, पीबी फ्लैट, एरो गोज अपवर्ड, सो यू ऐड 1100. इज दैट क्लियर? यस, गॉट इट? समझा? पक्का? नेक्स्ट वन, checks of 400, 300 and 200 were issued, out of which checks of 200 were lost in drive. वापस multiple checks है, so I'll just add them up. 432 is 900 I think. Is that right? Issued का मतलब CB में आ चुके हैं? हाँ? 500 versus 600 versus 100, तो 700 का सेम मंथ हो गया है। 700 का दिसंबर में क्लियर हुआ है, देखना 500 का जैन में गया, 600 का डिसऑनर हुआ। अभी तो वो बोला यार लास्ट पार्ट पढ़ो ना, लास्ट में चेक अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बैलेंस क्लियर हो गया है। देख मैं बोल रहा हूं, मेरे को तो सुन, 500 का जैन में क्लियर हुआ है, अपन दिसंबर का कर रहे हैं। हाँ उधर लो जाना, अपन दिसंबर का कर रहे हैं। वी आर डूइंग इट फॉर दिसंबर, तो 500 का जैन में गया है, 600 का डिसऑनर हुआ है, तो 700 का क्लियर हो गया। ये बात समझा आप लोगों को? क्या बोला सुना? जो लास्ट स्टेटमेंट पढ़ने का, लास्ट पार्ट का चेक अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बैलेंस क्लियर हो गया, लास्ट पार्ट का क्लियर हुआ है तो बैलेंस क्लियर नहीं हुआ है। ओके, उल्टा सोचो। देन चेक्स ऑफ 432 मतलब 900 दिखा है, 200 वाज लॉस्ट, तो ये सीबी में तो पीबी तक पहुंचा कि नहीं? नहीं। 300 वाज प्रेजेंटेड इन दिसंबर, मतलब ये क्लियर हो गया है। व्हाट विल यू अज्यूम अबाउट 400? दैट इज नॉट क्लियर। क्यों? क्योंकि ये वाला क्लियर हो गया। ओमकार थोड़ा सा इधर गया, सब इधर, ये वाला क्लियर हो गया तो बैलेंस क्लियर नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ तो बैलेंस क्लियर हो गया। तो जो क्लियर हो गया है सेम मंथ वो बीआरएस में दिखने वाला नहीं। गॉट इट? तो 600 से कैश बुक गया, पासबुक फ्लैट माइनस। वो और कोई डाउट है अभी तक? समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। चेक्स ऑफ 8000 में डिपॉजिटेड इन द बैंक, वापस मल्टीपल चेक्स है। 8000 के चेक आपने डिपॉजिट किए हैं, प्लीज लुक एट द बोर्ड। उसमें से 1000 वाज कलेक्टेड, 1000 वाज कलेक्टेड, मतलब ये सीबी में भी है, पीबी में भी है, am I right? हेलो। चेक ऑफ 800 वाज डिसऑनर्ड, मतलब ये सीबी में पीबी में नहीं है, मिला। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 2200 वर कलेक्टेड, मतलब ये दोनों में आ गया, तो बचा कितना? 4000। ये 4000 हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो अपना लोचे वाला अमाउंट कितना है? 4800। इज दैट क्लियर? सीबी अप, पीबी फ्लैट, यू ऐड 4800। या दिमाग में मल्टीपल चेक समझा? पक्का? हेलो। नेक्स्ट, check of 10,000 are drawn, out of which 2,000 was not presented due to technical reason. वापस drawn मतलब issued, so 2000 का check was not presented, मतलब CB में PB में नहीं है। Are you listening? Yes sir. And remaining check, of the remaining check 3,000 are presented in Jan. We are doing it for December. तो ये तो जैन में होगा, दिसंबर में नहीं हुआ है। What will you assume about balance 5? ये हो गया। अभी समझा? लास्ट पार्ट अगर नहीं हुआ तो ये हो गया। तो लोचे वाला कितना है? 5000। I think issued है तो CB down, PB flat, arrow goes downwards, -1. Sorted? Next one.
Checks of 1,809. What is 1,000 plus 8 plus 9? 2,700. 2,700 के checks क्या है? Deposited है कि issue deposited है. Out of it, 1,000 is collected on 31st December. What is 31st December? Same month, right? 1,000 दोनों में आ चुका है. Then what about 800 on 1st Jan? मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है? और 900 on 2nd Jan, तो ये भी नहीं हुआ. तो रोचे वाला क्या है? 9 plus 8, 1,700. It's deposited. CB up, PB flat, arrow goes upwards plus 1,700. Hope that is clear? लग रहा है सबको? Multiple checks कैसे डील करना है? Always break them down. Always break them down and इंडिविजुअली टैकल कर सकते हो आप. स्टेटमेंट भी इंडिविजुअली बनाओ चलेगा. चेक ऑफ 6,000 में इश्यूड ऑन 28th of December. 6,000 के चेक इश्यू किए हैं दिस टाइम. दिस इज सीबी, दिस इज पीबी. आउट ऑफ व्हिच 500 वाज प्रेजेंटेड ऑन 2nd Jan. क्या ये पहुंचा पासबुक तक? नहीं. 4,000 वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट. क्या ये पहुंचा? नहीं. एंड द चेक ऑफ 1,500 वाज डिसऑनर्ड. क्या ये पहुंचा? नहीं. Entire 6,000 is hanging in between somewhere. This is minus 6,000. बराबर 6. What's your final? Positive. 3,000 positive आ रहा है. Please check. ये क्या लिखो? ये positive आ रहा है तो bank balance as per CB. Bank balance as per cash book. Bank balance as per cash book. Is that clear? Done. Done? Leave aside for statement. Take sum number 17. Now 17 is all typical transaction of transfers. 17 and casting. Transfers and casting. Mainly casting. Casting errors and transfers. Sum number 17. 70. देखो. Sum number 17 के बारे में क्या है? पिछला सम क्लियर है सबको? मल्टीपल चेक्स, एनी डाउट्स? अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो. पक्का? पूरी क्लियर है सम. चलिए देखो 17 credit balance in cash book. What is credit balance? Overdraft. Perfect. Bank OD as per cash book. Bank OD as per cash book. It is 2,000. So we are moving from cash book to passbook with overdraft. We are moving from CB to PB with overdraft. क्रेडिट बैलेंस ऑफ सीबी इज ओवरड्राफ्ट. अभी ये वाला चीज है ना, इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा तकलीफ होता है काफी स्टूडेंट्स को. देखो हम लोग का अकाउंट कौन सा वाला है? करंट. उस पर फोकस रखना है. ठीक है. अगर करंट में पैसा आया तो ऊपर, करंट से पैसा गया तो नीचे. इतना ध्यान रखो. एंड हु डज दीज ऑपरेशंस फर्स्ट? बैंक और द कैशियर. बैंक. So whenever there are transfers, the first effect will always come in passbook. Is that clear? Please focus. An amount of 3,000 transferred from savings to current, not recorded in cash book. आगे वाला बात में करते हैं. 3,000 transferred from savings to current. मतलब पैसा तो PB में आया कि CB में? PB में. PB goes up by 3, CB flat, arrow goes upwards. Normally you add here, you subtract. And आगे क्या दिया? 4,000 transferred from current to FD, recorded on the receipt side of cash book. So current to FD, पैसा आया कि गया? गया. Current to FD मतलब पैसा गया. कितना? 4,000. And this is flat, arrow goes downwards. Sorry, it is recorded on the receipt side of cash. Instead of going down, it went up. So the gap is doubled. The gap is doubled. It is plus 8. Got that? हमने क्या किया है? A transfer from current to FD. Current to FD मतलब पैसा आया कि गया? Current to FD मतलब गया. PB went down.
was recorded on the receipt side. So CB went up, opposite side. Last class में किया था यार, आमिर वाला कोई लोग समझो. Then ये clear है सबको? Next one. मिला तो? A check of 1000 issued from current and 1200 from savings. The amounts were interchanged in cash book. देखो, 1000 का चेक करंट का है, 1200 का सेविंग्स का है. आइडियली कौन सा चेक कैश बुक में होना चाहिए था? करंट वाला. लेकिन गड़बड़ क्या कर दी? सेविंग्स वाला डाल दिया. कौन सा वाला डाल दिया? सेविंग्स. अमाउंट्स वेर इंटरचेंज मतलब क्या? सेविंग्स का चेक करंट में आ गया, करंट का चेक सेविंग में चला गया. तो यहाँ पे अपने को सुधारना नहीं, अपने को देखना जो हुआ है वो. तो कैश बुक में इश्यू किया ना, तो नीचे तो गया, लेकिन 1000 से या 1200 से जाना चाहिए था 1000 से, लेकिन गया 1200 से. What will you assume for passport? क्यों ऐसे सोच रहे हो आप? One mistake. ऐसे मत सोचना ये फ्लैट है, इधर 1000 की एंट्री आ चुकी है, समझा? हेलो. तो arrow goes upwards, you add the, sorry, normally you add here, you subtract 200. Subtract 200. Cool? Sorted? Discount column on the cash book, the debit side was overcasted and cash column was undercast. Are we bothered about those columns? No effect. No effect या no entry. Reason लिखने का, discount and cash columns do not affect BRS. Discount and cash column do not affect BRS. We are concerned with only one column, that is bank. Is that clear? ये लो, समझा कि no? Next one, हाँ बता दो. Bank has wrongly debited our account on 20th November. However, it was rectified on 25th November. तो पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, उसी महीने में नलिफाई हो गया. तो दिस इज आल्सो नो इफेक्ट. तो रीजन लिखना है. ये रीजन आपको कहाँ लिखना है? एक्चुअल जो स्टेटमेंट बताऊंगा उसके नीचे, एक्चुअल स्टेटमेंट के नीचे ये रीजंस लिखना है कि दिस इसके नो इफेक्ट है. यही स्टेटमेंट लिखना है, मेन आंसर में होना चाहिए. ठीक है, ये मेन आंसर नहीं है. ये बनाओगे तो कितना मार्क्स मिलेगा? 0. हम लोग करेंगे स्टेटमेंट, उसका मार्क्स. सो क्या लिखोगे सर? Since the error was rectified in the same month, no effect on BRS. No effect on BRS. कोई क्वेश्चन दिया है वही लिखने का, and no effect on BRS. No effect on BRS. बट अगर सेम मंथ में रेक्टिफाई ना होता तो आता. वही हो रहा है नेक्स्ट वाले में. Bank had wrongly credited our account on 20th November. However, it was rectified on 2nd December. PB goes up, but did it go down? It went down, but in the next month. ये महीने में तो नहीं हुआ, ये महीने में फ्लैट ही रह गया. So arrow goes upwards. Normally you add here you subtract कितना? Is that clear? ये लो. Check deposited of 500 was collected but was recorded in the cash column of cash book. तो चलो cash book तो flat रह गया, because we are concerned with the bank column. The CB is flat. Bank however credited somebody else's account. तो बैंक ने भी वही भलते अकाउंट में डाल दिया, तो PB में भी रिफ्लेक्ट. तो ना CB में ना PB में है, कहीं पर भी देख नहीं रहा है, तो नो इफेक्ट. इधर लिखने का, since the entry does not appear in cash book or passbook, no effect on BRS. Okay? Since the entry does not appear in cash book or passbook, no effect on BRS. What's your final answer? 6 positive. Bank OD as per Bank OD as per passbook. Bank OD as per passbook.
समझा? नो. Tell me any doubt in this till ask. Next, ये वाला हो गया सबका, समझ में आया सबको? पक्का पक्का? Sure. Next, 18th one. Final balance 6,700. 6,700. Final balance 6,700. आगे 18th sum, या 18th sum ले लेना है सबको. sum number 18. 18th देखिए ध्यान से क्या दिया है. Prepare a BRS. Cash book showed a bank balance of 1,000. So it is bank balance as per cash book. This is 1,000. So we are moving from CB to PB. Normal or OD? Normal. CB to PB it is normal. बराबर छे. Hello. Right. Sorted. Now, देखो. Debit side of these are all casting errors. How to tackle casting? Convert the sides into what? Receipts or payment. फिर what is the thumb rule? Receipts overcast मतलब बड़ा. Receipts undercast मतलब घटा. Payments overcast घटा. Payments undercast बड़ा. बराबर? देखो. Now. 18. Debit side of cash book was overcast by 100. सारे casting को individually treat करने का अलग अलग. Debit side of cash book overcast. मतलब receipt ज़्यादा बताया. CB goes up. CB up. PB flat. Arrow goes downwards. Minus 100. बराबर? दूसरा. Payment side of cash book undercast by 100. Now payments undercast. मतलब payments कम बताया. Payments कम बचत तो CB goes up or down? Up. Payment undercast तो भी CB goes up. Up ना? Down के साथ. समझा ये वाला? हाँ. हाँ इसमें चलेगा. But 200 बने तब तक अवॉइड करो कास्टिंग एरर अलग अलग दिखाओ तो बेटर है. इस केस में चल जाएगा. BRS में कभी भी स्प्लिट करके लिखोगे तो आना नहीं. You can write the split. Receipt side of bank column was over added by ₹1. Receipt side of bank column बोल के छोड़ दिया. अभी बैंक कॉलम किस पे होता है? कैश बुक होता है. बैंक में तो कॉलम वॉलम का लफड़ा ही नहीं है. एक ही है बैंक की है. बैंक कॉलम किस में होता है? कैश कॉलम किस में होता है? कैश बुक में. तो रिसीट साइड ऑफ बैंक कॉलम वाज ओवर एडेड. मतलब रिसीट ज्यादा बताया तो CB गोस अप. PB फ्लैट सो -1 बराबर. एंड ओवरड्रॉन साइड ऑफ पासबुक वाज अंडर एडेड बाय ₹1. व्हाट इज ओवरड्रॉन साइड? पेमेंट साइड. नॉट क्रेडिट. क्रेडिट इज रिसीट. पेमेंट साइड. पेमेंट साइड वाज अंडर एडेड. पेमेंट्स कम बताया. अप और डाउन? अप. पेमेंट्स कम बताया. अप. इन विच बोथ? Passbook +1. Is this clear? समझा कि नहीं? Debit total of passbook was carried forward as 1,000 instead of 100. Debit total of passbook मतलब क्या? Debit total of passbook मतलब payment. ध्यान से समझना. How to think like this? देखो. Debit total is payment का total. Payment was carried forward as 1,000 instead of 100. था 100 दिखा दिया 1000. तो कहने से पेमेंट ज्यादा बता दिया. पेमेंट ज्यादा बताया तो पैसा कितने से? 900 इन पासबुक बराबर. तो -900. और भी आगे. एंड रिसीट साइड ऑफ पासबुक द बैलेंस वाज कैरीड फॉरवर्ड एज 100 इंस्टेड ऑफ 1000. रिसीट साइड ऑफ पासबुक receipt side of passbook the balance was carried forward 100 instead of 1000. मतलब 1000 का रिसीट था कितना दिखाया? 100 का. तो रिसीट बढ़ा है कि घटा है? अप और डाउन? बाय 900. समझ में आया? हेलो दोनों में the arrow goes down. थर्ड वाला बाबू
Debit total of passbook was carried forward as 1000 instead of 100. What is debit of passbook? Payment. Was carried forward as 1000 instead of 100. तो एक्चुअली 100 का पेमेंट था, आपने 1000 का पेमेंट बता दिया, ज्यादा पेमेंट बता दिया. कितने से ज्यादा? 900. सो बेसिकली पेमेंट ओवरकास्ट हो गया बाय 900. पेमेंट ज्यादा बताया, खर्चा ज्यादा, पैसा गया. एंड रिसीट साइड ऑफ पासबुक द बैलेंस वाज कैरीड फॉर 100 इंस्टेड ऑफ 1000. रिसीट वाज कैरीड फॉर 100 इंस्टेड ऑफ 1000. 1000 का रिसीट था, आपने 100 का. 1000 का रिसीट था, आपने 100 का बता दिया. तो रिसीट कम कर दिया, रिसीट 900 से कम किया तो पैसे गए. रिसीट अंडर कास्ट कर दिया. पहले में पेमेंट ओवर कास्ट किया, दूसरे में रिसीट अंडर. क्लियर है? Overdrawn side is payment side. Overdrawn, abnormal, debit is all payment. Normal, bank balance is all receipt. बड़े क्लियर यहाँ तक? Payment side of passbook was under added by ₹10. Payment side was under. Payment कब बताया? Balance goes up. बराबर से. And credit side of bank statement was added 10 more. What is credit side of bank statement? Bank statement मतलब passbook. Credit मतलब receipt. It was added 10 more. मतलब receipt ज़्यादा बताया तो plus 10. बात समझ आई? negative 980. तो क्या लिखूँ? Bank OD as per passbook. Bank OD as per passbook. समझा क्यों? ओड़ा ओड़ो ओड़ो समझा क्यों? Now, let us move on to the statement part. You know how to make the statement. At least one or two sums will practice. Vacation में homework किया statement. एक दो समझा करते हैं बाकी स्टेटमेंट्स आता है क्या वन टू सम इन प्रैक्टिस बाकी सारे स्टेटमेंट्स होमवर्क है. स्टेटमेंट्स में व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज कॉपी द क्वेश्चंस. कॉपी द क्वेश्चन. आप ट्राई करो उसको क्रिस्प बनाने का. स्टेटमेंट इज व्हाट द रीजन ऑफ डिफरेंस. You try to make it crisp in a way. How many of you know whether your statement is right or wrong? Statement पढ़ के arrows बनाने आना चाहिए. Yes. Statement पढ़ के arrows अगर बन रहा है, that means your statements are right. ठीक है? अभी 11th स्टैंडर्ड में आप और elaborated statement लिखते थे. यहाँ पे आप शॉर्ट में statement लिखोगे चलेगा. But इतना भी शॉर्ट में नहीं होना चाहिए कि मीनिंग ही डिस्टॉर्ट हो जाए. ठीक है? तो एक दो शब्दों में बता दो क्योंकि वहां पे एग्जाम में है ना 11th 12th में क्या है, आप 3 घंटे के टाइम में फाइनल्स में 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो. 11th में भी और 12th में भी. आउट ऑफ दैट 7 1 इज ऑब्जेक्टिव. 6 क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट इन योर पेपर 11th and 12th. बट इन सीए एग्जाम, सीए फाउंडेशन, यू अटेम्प्ट 12 to 13 क्वेश्चंस in 3 hour time. And they are all lengthier than your 11th 12th का क्वेश्चन. सारे के सारे लेंथी भी है, डबल क्वांटिटी है, टाइम उतना ही है 3 घंटे. तो इसलिए आपको टाइम पे सेव करना है. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था 2 कारण से मार्क्स जाते हैं. याद है किसी को? एक टाइम कंस्ट्रेंट, स्पीड जो है, और वर्किंग नोट्स. वर्किंग नोट्स में कंजूसी, so the students lose marks. Remember those 2 points. Let's start with statement. हम लोग मॉड्यूल के सम करते हैं विद स्टेटमेंट. I want you to take sum number 5. You have done sum number 5? Sorry, not 5, not 5. नहीं, not 5. Question 7. 7 का एरोज रहेगा आपके पास. They are making a statement for 7. अरे स्टेटमेंट करना एरो है ना.
अभी क्वेश्चन देख के बाजू वाले का एरोस देख के बना लीजिए। सम नंबर 7 फॉर्मेट देख लो ध्यान से। 7 सम देखो फॉर्मेट देख लो। इन द बुक्स ऑफ कौन है गड़बड़ वाला। इधर लिखने का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन कौन सा डेट है 31 दिसंबर 2011 है नहीं 2017 format is like this. You have a serial number, you have particulars and you have amount. Okay, serial number, particular and amount. Okay, focus. We are doing 7 sum. Silence. Just tell me the first balance. Cash book showed the bank balance, I think. So bank balance as per cash book. इधर कोई short form नहीं लिखना है. Try to avoid short forms over here. 8,36,400 in the outer column. How many figures you have in the outer column? 5. The two balances, the two subtotals of add and less, and one more extra subtotal. That's it. Okay. And what you are supposed to write in the statement, the question. The questions are the reasons. So if you are not able to frame it on your own, simply copy the question. Okay? But वो थोड़ा lengthy हो जाएगा. You need to short it and try to mention it in your own words. Okay? Just tell me what have you added? नहीं amounts. 1,50,000 ऐड किया और 3520 और 3699 और 25,000 और ये सारे ऐड किए। 1.5 लाख डिपॉजिट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर वाज नो बैंक कॉलम देयर इन। तो क्या लिखने का डायरेक्ट डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डायरेक्ट डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या ये पढ़ के आप एरो बना सकते हो? यस। तो आपने सही लिखा। ओके, डायरेक्ट डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। द नेक्स्ट वन इज 15 to 60 on the previous day was brought forward as credit balance. So debit balance of cash book wrongly brought forward as credit balance. Debit balance of cash book wrongly brought forward as credit balance 30,520. What is the next amount? 3699. 3699 क्या है आपका? This वाला हाँ checks drawn, that is checks issued but not presented. Simple. Checks issued but not presented 3699. You can also write checks issued but not cleared, checks issued but not presented to the bank. You can write it in your own words. नहीं जम रहा है sir own words. इंग्लिश में लफड़ा है तो छापो छापो क्वेश्चन छापो। आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। देन और क्या ऐड किया? 25,000 डिविडेंड कलेक्टेड एंड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो अलग है। तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। सिर्फ इतना लिखोगे तो भी काम बन गया। डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक। इसको देख के पता चल जाता है पीबी अप सीबी फ्लैट फ्लैट फ्लैट। देन
3.5 लाख है ना लास्ट वन। तो आउट गोइंग मतलब चेक इश्यूड बट recorded twice in cash book. Check issued but recorded twice in cash book 3,50,000. Then you push the total in the outer column. What is that? 5 5 5 2 1 9। फिर इसको ऐड करो 559,219 plus 836 400। 13,95,619 and then less what do you have in less now? The remaining items 10,000 payment side of cash book under cash। वैसे ही छाप दो payment side of cash book under cast। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट 10,000। दूसरा क्या है 131 है आई थिंक, नहीं वो तो हो गया 131 है ना। इश्यूड वाज नॉट, अच्छा हो गया। चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1,31,000। व्हाट एल्स? 1,000 subscription paid by the bank। तो इतना लिखा तो भी चलेगा। What is the subtotal of less than 142? 142 नेगेटिव, इसको ब्रैकेट में रख। पूरे प्रॉब्लम में एक ही चीज नेगेटिव रहेगी, दैट इज लेस का सबटोटल। ओके, rest everything is positive, even the final answer you have to write positive। भले ही फाइनल आंसर नेगेटिव आता हो, इधर नेगेटिव नहीं दिखाना है ब्रैकेट साइन, यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव ओनली। वो बैंक बैलेंस ओडी उसका इंडिकेटर बन जाता है। ठीक है, तो करो अभी 1253 मैच हो रहा है आपके आंसर के साथ। पॉजिटिव था तो क्या लिखना है? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, समझा? ये पूरा प्रॉब्लम आपको विद एरोस में विद स्टेटमेंट करने के लिए 10 से 12 मिनट मिलेगा। 11th स्टैंडर्ड यू गेट 15 to 20 मिनट्स, इधर 10 से 12 मिनट। और एडजस्टमेंट वही डीआरएस में कम से कम 9 से 10 होता है, 9 to 10 एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, check issue but not recorded any cash book, like cash book नहीं, because usually we assume अगर नहीं है तो cash book। चेक इशू का पहला इफेक्ट सीबी में ही जाए, तो मेंशन करना जरूरी है कि आपने कैश बुक में नहीं किया। आगे भी मिलता है सीबी भी नहीं लिख सकते। नो शॉर्ट फॉर्म, नो सीबी, नो पीबी। ऑप्शन होता है बट ऑप्शन कैसा मेन है 6 में से 5 पूरा ही मेन करना पड़ेगा 20 मार्क्स पूरा। ऐसा नहीं कि 6 का 1 या 5 का 2 या कुछ। नेक्स्ट वन, ट्राई द स्टेटमेंट फॉर 9th sum। 9th sum का स्टेटमेंट ट्राई करो खुद से। 9th sum का करो स्टेटमेंट खुद से। खाली एक ही फिगर नेगेटिव होगा, लेस का सबटोटल, बाकी सारा पॉजिटिव। इवन द फाइनल आंसर पॉजिटिव, जैसा वैसा लिख देने, बैलेंस क्या होगी? इनसे क्या है करो 9 का बनाओ स्टेटमेंट खुद से। कम ऑन, मेक 9 का स्टेटमेंट क्विक। हाँ बोलो।
सॉरी Excuse. 9 का स्टेटमेंट करो. तीन लोग नहीं है. कौन? रिया दोषी. आजू बाजू देखो 2 जन और. Hire purchase payment not entered in CB. Simple. Hire purchase payment not entered in CB. बोलो ना आजू बाजू देख के कौन नहीं आया जरा देखो. मूवी देख लिया. हाँ और एक मूवी दिया और एक कमान लिया ना है. देखो अपना दोस्तों से यार ऐसा करता है तुम लोग. दृष्टि ये नहीं मोहन जियांश है. जियांश लब्धि नहीं आई. Check received, yeah, amount received from customer but entered wrongly in cash. Amount received from a customer, yeah, amount received and entered wrongly in cash book. Check received and entered with the wrong amount in cash. भक्ति पटेल की मैं क्या है क्वेश्चन? चेक डिपॉजिट बता दो. ऑफिस ओनर वो इसके लिए वापस चेक डिपॉजिट एंड सिंपल जम रहा है क्या स्टेटमेंट्स? अरे स्टेटमेंट भी छाप रहा है. चलो चलो बोलो क्या है? कितना है? 19. क्यों? इसमें क्या?
वो रेक्टिफिकेशन में 2 मार्क गया शायद। एक तो ऑब्जेक्टिव गया और डेप्रिसिएशन में तो पूरा आया और इसमें बैंक रिकंसिलिएशन कर दिया। बीआरएस में 4 गया। देखा मिस्टेक देखा सिखाने को जाता है ऐसा करेगा हेलो वाला बाकी सब इधर भी नहीं तो बोल हम क्या बोलते हैं हम एक्टिंग करेंगे 4 लाख डायरेक्ट बात इसके अरे जम रहा है भैया हो गया इतने टाइम में हो जाना चाहिए you'll be able to complete in this much time you mark the sum you guys mark the sum समझा मैं थैंक यू हो गया ना अपना हो गया ना नहीं चलो डन अरे जमरे सेगमेंट्स अभी solve these two 6 and 20 with statement अभी चालू करो फटाफट और it should not take more than 10 plus 10 20 minutes ओके 20 मिनट में होना ही चाहिए 6th sum and 20th sum 6th and 20th sum come on एकदम टकाटक दिमाग लगा के करो अच्छे से एकदम
6th and 20th. 6 and 20. Timing is very important. Arrows should be done in 3 to 4 minutes. 7 to 8 minutes for statement. 10 से 11 मिनट. करो मुंडी नीचे, काम करो फटाफट, एकदम ध्यान से, फोकस. आजू बाजू वाले का पिपिन पापा नहीं करने का, चुपका लिखने का, चुपचाप करो. चेक डिपॉजिटेड बट इज ऑन. 6th and 20th. दो सम 10-10 20 मिनट टकाटक होना चाहिए. पहले 6th करो सब लोग, उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, उसके बाद 20th करो. डेबिटेड मतलब पीबी इंटरेस्ट, डेबिटेड मतलब पीबी डाउन, पीबी फ्लैट. मैं आपको जो सम्स भेजूंगा ना, पेपर्स भेजूंगा मैं ग्रुप पे. डायरेक्ट स्टेटमेंट कैसा लिखेगा यार हीरो? अगर आता है तो डायरेक्ट प्लस माइनस ऐसे मिस्टेक होएगा. एरोस करो ना नहीं, तुम. मुझे नहीं आता है. यार ना भाई, थोड़ा एलेक्जेंडर मत बन. एरोस करो 2 मिनट में और फिर करो. हाँ क्या ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिला है ना अपने गवर्नमेंट से, तो इनकम है, दिया रहेगा. इनकम दिया रहेगा. आप कोई वो मेघालय, मणिपुर, आसाम जैसा एरिया में काम करते हैं ना, तो गवर्नमेंट सब्सिडी है. गरीब लोग को एम्प्लॉयमेंट देते हैं. बिजनेस स्टार्ट, धंधा भी होना चाहिए. सब गरीब लोग, भिखारी को कस्टमर रहेगा तो धंधा कहाँ है? उड़ीसा में, बंगाल में, इधर एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो थोड़ा इकोनॉमिक अभी ऐसा ड्रग्स वगैरह ये लोग कर सकते हैं. लोग का टाइमिंग है मार्केट. Guys, please try it on your own. Don't discuss. खुद से ट्राई करो. हाँ बोल क्या? ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिला पैसा, पीबीएफ ये बैंक को मिला है ना डायरेक्ट. हाँ गवर्नमेंट देता है ना सब्सिडी. सब्सिडी मतलब इफ यू डेवलप सम इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरियाज, लेस डेवलप्ड एरियाज, यू गेट कंसेशंस फ्रॉम गवर्नमेंट. दैट्स योर इनकम. गुजरात में पिक्चर नहीं चलता है तो उधर थिएटर वेटर खोलने का पैसा गवर्नमेंट देता है. 50,000 2 लाख रुपया सब्सिडी मिलता है. पिक्चर बनाने का पैसा, प्रोड्यूस करने का पैसा गवर्नमेंट से आता है. पिक्चर बनाओ, बच्चा पैदा करने का सब्सिडी देते हैं. सॉरी, स्कैम तो सब में होता है, बट जो चीज अभी डेवलप नहीं है उसको डेवलप करने के लिए मिलता है पैसा. उल्टा ही दिमाग चलता है. क्या बोल रहे हो गया पहला सम? तो ऐसे बैठा है गार्डन में बैठा है. बोलो keep it down, CV flat. जम रहा है पहला सम हुआ 6 का पेपर. पहला सम ना 6 का पेपर. Draft deposited in the bank but not credited. चेक ड्राफ्ट चेक ड्राफ्ट मैंने तो खुदा के ऊपर एरो बना स्टेटमेंट छोड़ दिया, फिर एप्लीकेशन किया, फिर किया, फिर स्टेटमेंट किया. ये तो अलग है.
ये हो गया रेक्टिंग क्या 3 एंट्री की है 2 एंट्री किया डेब्री क्या डेब्री में सेल्स का चेक पार्ट यहाँ से लास्ट कब तक किया फिर वापस आया 2 एंट्री किया फिर वापस बहुत मिस्टेक होता है हुआ ना इसमें तो वो है ना वो मोर्चे वोर्चे में लग गया सच्ची में ब्राइट फ्यूचर वेरी ब्राइट जब मिला तू गया नहीं उधर नुकसान हो गया जाके ऐसा चिल्लाने का जोर से 100-200 हजार का बिल ऐसे ही खाता है फिर तो आ गया इसको दोस्त बोलो by the bank to be down debited debited by the bank मतलब पैसा गया debited to the company's account what is company's account passbook उसमें डेबिट कर दिया मतलब पैसा गया कम हो credited to the company's account what is passbook company's account debited to debited from बैंक ने किया ना डेबिट मतलब ऐसा उतना इंग्लिश में मत पूछो हमने डेबिट किया कि बैंक ने किया वो मैटर करता है which one 6 का 6 क्या है wrong debit नहीं bills for collection collected by bank but no advance received हाँ to be right bill for collection मतलब वो bill of exchange this receivable बैंक ने कलेक्ट किया हमें बता रहे हैं 6 का आंसर मेरा 6 का 6 का आंसर बोलो मेरे को 16,93,600 yes sir right Would you understand this sum? Make the statement, then go to the next one. Fast. Come on. Speed, huh? आलतू फालतू मत लिखना स्टेटमेंट स्पीड मतलब परफेक्टली बनाने का देखो दिमाग लगाओ थोड़ा क्रेडिट बैलेंस फॉर 2600 is brought forward as डेबिट बैलेंस कौन सा बुक को दिया नहीं तो कैश बुक अज्यूम तो कैश बुक का क्रेडिट मतलब क्या होगा मतलब पेमेंट ऑफ 2600 वो तो नहीं एंड वो ब्रॉट फॉरवर्ड डेबिट बैलेंस तो आपने क्या किया पेमेंट को नहीं लिया मतलब पेमेंट अंडर चार्ज हो गया बाय 2600 एंड रिसीट में मतलब रिसीट ओवर चार्ज हो गया पेमेंट अंडर चार्ज प्लस रिसीट ओवर so it went up by 5,000 भी up by 5,000 अगर आप पेमेंट बिल्कुल ना लिखते मैंने का जीरो तो would have gone up by 26 इधर पेमेंट नहीं लिखा और रिसीट भी लिखा डबल ऐसा बोलना एक सेकंड 29
6 सम का आंसर आना चाहिए 1693600 वापस बोलना 1693600 बैलेंस है कि उड़ी नॉर्मल है ना उड़ी उड़ी अच्छा ओडी से स्टार्ट किया ना हाँ तो ओडी 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 फाइबर 20 पहले दोनों दे होगा परफेक्ट चलो ये इतने टाइम में पहला सम हो जाना चाहिए आपका विच स्टेटमेंट अभी दूसरा लो 20 ये परफेक्ट स्पीड है 10 मिनट में होना ही चाहिए सिक्स में कोई डाउट सब्सिडी वगैरह समझा आपको पैसा मिला है सब्सिडी बिल फॉर कलेक्शन समझा हेलो बिल फॉर कलेक्शन मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज बीआर का पैसा आया है वो सेम ड्राफ्ट चेक सेम सीबीएफ पीबी फ्लैट बैंक ड्राफ्ट डिपॉजिट सेम ही है चेक डिपॉजिट सीबीएफ पीबी फ्लैट What? Come on, guys. Be a bit quick. थोड़ा फास्ट करें. 1 minute. Any doubt in sixth sum still anyone? Sure. बढ़ो चलो 20 आता. और कंडीशन 45 वो आगे कर लो. वो 45 से नीचे जाएगा और ये आगे बॉस वो अलग ही अलग दोनों अलग पहले वाले में सीधी डाउन है और दूसरे वाले में सीधी डाउन है दिमाग लगा वही तो है मैं यूजर प्रिंट कम ऑन वैसे भी कर सकते हो बट एग्जाम के लिए इधर भी चले माइनस उसका
पासबुक पहिला कॅशबुक पिक्चर आहे फर्स्ट क्लास बराबर हाँ बैंक कमीशन नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल लिखा टीवी डाउन टीवी नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल मतलब टीवी में नहीं है टीवी में नहीं हुआ टीवी में हुआ है टीवी डाउन टीवी आगे क्या है इंस्पेक्शन पहले दिया हो पासबुक में होने के बाद कैश बुक सितंबर अपने को आ गया बड़े बड़े मामले का बैंक का डेबिट तो सीबी डाउन सीबी अपने को पता चल गया था हमें पता चल गया था 29 को on 29 so CB went down but bank ने जो बोलते हैं अकाउंट में डाल में डाल हम देख के CB डाउन दो डबल नीचे होली का ऐसा करिए अपन सीधे ऊपर ले नॉर्मल वन टू नॉर्मल करेंगे ना लेफ्ट टू राइट में लास्ट में चेंज करेंगे ना तो सीधी I PB flag CB No entry, but no entry. Okay, 20th का arrows हो गया. What is the answer for 20th? 1, 5. Positive, negative. So bank balance. But statement में negative मत लिखना. Bank balance लिखा मतलब it is negative. ऐसा मत कर. दोनों में ढूंढ और verify. क्या दो बार calculation verify.
इतने टाइम में आपका हो जाना चाहिए था स्टेटमेंट के साथ. How many are still doing? Yeah, how many have done with statement? दोनों सर. बैठो. स्टेटमेंट के साथ हो जाना चाहिए. अच्छा, एनी डाउट इन 20? वो आया आपको क्रेडिट का डेबिट बैलेंस समझा? डेबिट का क्रेडिट, कैश बुक, हेलो 2600 वाला समझा? 2600 क्रेडिट का डेबिट मतलब पेमेंट का रिसीट है कि रिसीट का पेमेंट है? क्रेडिट का डेबिट पेमेंट का रिसीट था तो सीबी वेंट अप बाय 5200. पीवी फ्लैग कैसा समझा? क्रेडिट वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज डेबिट. व्हाट इज क्रेडिट? पेमेंट. वो तो नहीं दिखाया और डेबिट दिखाया मतलब रिसीट दिखाया. तो पेमेंट 2600 से कम एंड रिसीट 2600 से बढ़. The payment under cash plus receipt over cash. It went up by 52. CB went up by 52. Is it flat? समझा? ओडी में माइनस बैलेंस है तो नॉर्मल बैंक बैलेंस. इसको अलग-अलग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं. बड़े बैलेंस छोटा. नबी सेकंड में 45 मैंने से लिख वही करना है. दोनों वाले 2000 वाला भी चलेगा. डेबिट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इसका कितना है? डेबिट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इसका कितना है? Any doubt other than that? 20th some arrows all clear? Yes sir. सबका हेलो छापो आपको मार. देख लो ध्यान से. जितने बचे हुए स्टेटमेंट्स हैं सारे होमवर्क हैं. और एक चीज मैं बोला मैंने आपको क्या कि 12-13 पेपर्स जो आपके हुए हैं ना एक्चुअल आईसीआई पेपर्स सीए फाउंडेशन के भेज दूंगा मैं ग्रुप में विद सॉल्यूशंस. सॉल्यूशन छापना मत, खुद से सॉल्व करना. जो भी अभी नहीं भेजूंगा, एंड में भेजूंगा सॉल्यूशन खाली वेरीफाई करने के लिए. आपको खुद से जर्नल, लेजर, सब्सिडी, कैश बुक, पेडी कैश बुक ढूंढना है, बीआरएस ढूंढना है और सॉल्व करना है. खाली एक चीज का ध्यान रखना, सुनो, बीआरएस में अगर एडजस्टेड कैश बुक पूछा है ना वो सब मत करना. सुना? एडजस्टेड कैश बुक वाला मत करना, बाकी नॉर्मल बीआरएस सारा. और खाली एरोस करना. स्टेटमेंट तो आता है आपको, खाली एरोस करना. जस्ट डू द एरोस. इतना एक महीने में करके रखना till the class reopens of CA. आज मोस्टली अकाउंट क्लास वो बचा तो मैं ले लूंगा. नहीं अभी मतलब हुआ तो कौन सा लास्ट में बैंक had given a wrong rate of 125.4 on 26 September. Same was shown on reverse. Wrong rate मतलब ये भी अब रिवर्स किया. चलने वाले ने किया था ना अपना. It was rectified in the paper में ना होता है.
ऐसे दिवाली में भी homework दिया था। और सर अब हर बार ऐसे करता हूँ हाँ सर, दिवाली में भी ऐसे homework दिया था। स्टेटमेंट आता है सबको अभी? How many are still doing? Answers हुआ मैच बनता बनता। That's it. Now we are left with two parts of PRS. एक है extract और एक है adjusted cash book. That will take later. तो इसका हो गया show me the book and